মহারাষ্ট্র নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়। মহারাষ্ট্রে আস্থা ভোট চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা। কাল কি হতে চলেছে মহারাষ্ট্রে? আস্থা ভোট হবে কি হবে না, 3.5 ঘন্টা ধরে সওয়াল জবাব চলে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের অপেক্ষা। আস্থা ভোট হলে কালই ইস্তফা দিতে পারেন উদ্ধব ঠাকরে, এমনটাই সূত্রের খবর। এ বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহ। তার আগে আপনাদের জানিয়ে রাখি, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ। মহারাষ্ট্রে আস্থা ভোট চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা। মহারাষ্ট্রে আস্থা ভোট চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা। কাল কি মহারাষ্ট্রে আস্থা ভোট কি হতে চলেছে? 3.5 ঘন্টা ধরে সওয়াল জবাব চলে। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, সেই নির্দেশেরই অপেক্ষা। ইস্তফা দিতে পারেন উদ্ধব, এমনটাই সূত্রের খবর। কথা বলবো আমাদের প্রতিনিধি বিজেন্দ্র সিংহ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। বিজেন্দ্র, আজকে সওয়াল জবাবে অভিষেক মনু সিংভি যেটা উল্লেখ করেন, রাজ্যপাল দেবদূত নন। 11 জুলাইয়ের শুনানির আগে কেন আস্থা ভোট প্রশ্ন করেন অভিষেক মনু সিংভি। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই নির্দেশ। কি খবর রয়েছে এই মুহূর্তের সূত্রে? পাপিয়া, এই মুহূর্তে আইনজীবীরা উপস্থিত হয়েছেন কোর্টের মধ্যে। কিছুক্ষণের মধ্যে বেঞ্চ বসবে এবং তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেবেন যে আগামীকাল আস্থা ভোট হচ্ছে কি হচ্ছে না। আর্গুমেন্ট গুলো যখন রেখেছিলেন অভিষেক মনু সিংভি শিবসেনার তরফ থেকে, অর্থাৎ উদ্ধব ঠাকরে শিবসেনার তরফ থেকে, তিনি এই আর্গুমেন্ট গুলো দিয়েছিলেন যে এত দ্রুত সুপার। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো বিজেন্দ্র। মহারাষ্ট্রে আস্থা ভোট চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা। আর একটু পরেই রায় দেবে সুপ্রিম কোর্ট। फैसला पड़ा, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि फैसला पढ़ा जा रहा है, वो फैसला जिसका बेसब्री से इंतजार हो रहा था। कोर्ट में जो वरिष्ठ वकील है वो मौजूद है और फैसला पढ़ा जा रहा है। अगले कुछ मिनटों के अंदर, अगले कुछ सेकंड के अंदर वो बड़ी तस्वीर हमारे साफ होगी कि हमारे सामने साफ हो जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट का क्या है अहम फैसला पढ़ा जा रहा है। এজলাসে উপস্থিত সব পক্ষের আইনজীবী, যে নির্দেশ সেটা পড়া হচ্ছে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা জনসমক্ষে আসতে চলেছে। মহারাষ্ট্র বিধানসভায় কাল আস্থা ভোট হবে কি হবে না, इस पर रोक नहीं है। जी बिल्कुल, फ्लोर टेस्ट पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में साफ कर दिया है। वो सुप्रीम कोर्ट जिसका सुप्रीम फैसला सामने आ गया है कि कल अपने तय वक्त पर होगा फ्लोर टेस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह माना जाए कि उद्धव ठाकरे आज रात में या कल इस्तीफा देंगे या फिर वो फ्लोर टेस्ट का सामना करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी वो फैसला भी अभी ये पूरा फैसला पढ़ा जा रहा है। उसमें यह भी देखना दिलचस्प होगा कि ये जो विधायक हैं, जो 16 विधायक हैं, उनको लेकर क्या कहा जा रहा है। बड़ी खबर एक और है कि नोटिस जारी किया जा रहा है। कल जो भी परिणाम होगा वो हमारे अंतिम फैसले से बंधा होगा। यानी कि कल जो है, जो भी ये फ्लोर टेस्ट का नतीजा होगा वो सब्जेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल इस मामले में फैसला आएगा उससे बंधा होगा। मान लीजिए ये होता है कि कल जी रूबिका, अब मान लीजिए कि कल जो फ्लोर टेस्ट होता है उसमें जो विपक्षी पार्टी है आज की तारीख में, यानी कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट, वो बहुमत हासिल कर लेता है, तो उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट 16 विधायकों का मामला अभी लंबित है ना, उस मामले में जो फैसला दिया जाएगा वो उससे बंधा होगा। जी, মহারাষ্ট্রে কাল আস্থা ভোট হবে কি হবে না, এখনো পর্যন্ত যেটা জানা যাচ্ছে যে মহারাষ্ট্রে কাল আস্থা ভোট, এমনটাই সুপ্রিম কোর্টের পক্ষ। এখনই জানা যাচ্ছে মহারাষ্ট্রে কাল আস্থা ভোট। আস্থা ভোটের ওপর স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। যে প্রশ্নটা সব থেকে বড় ছিল, ফ্লোর টেস্ট হবে কি হবে না, সুপ্রিম কোর্ট উদ্ধব ঠাকরের বড় ধাক্কা। কালই আস্থা ভোট। আপনাদের জানিয়ে রাখি, মহারাষ্ট্রে কালই আস্থা ভোট। কালই বিধানসভায় গিয়ে ইস্তফা দিতে পারেন উদ্ধব ঠাকরে, এমনটাই সূত্রের খবর। কালই আস্থা ভোট। আস্থা ভোটের ওপর স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট, অর্থাৎ কালকেই ফ্লোর টেস্ট। মহারাষ্ট্র বিধানসভায় কালকেই ফ্লোর টেস্ট। আস্থা ভোটের ওপর স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। যে প্রশ্নটা অত্যন্ত বড়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ফ্লোর টেস্ট হবে কি হবে না, আস্থা ভোটের ওপর স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টে উদ্ধব ঠাকরের বড় ধাক্কা। আস্থা ভোটের ওপর স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। কালই আস্থা ভোট হবে বিধানসভায় গিয়ে ইস্তফা দিতে পারেন উদ্ধব ঠাকরে, এমনটাই সূত্রের খবর। যেটা জানা যাচ্ছিল যে বিধানসভায় ভাষণ দেবেন এবং তারপর ইস্তফা দেবেন, যেমনটা জানা যাচ্ছে কালই বিধানসভায় গিয়ে ইস্তফা দিতে পারেন উদ্ধব ঠাকরে। আস্থা ভোট ওপর স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। আস্থা ভোটের ওপর স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টে উদ্ধব ঠাকরের বড় ধাক্কা। কালই আস্থা ভোট। কালই বিধানসভায় গিয়ে ইস্তফা দিতে পারেন উদ্ধব ঠাকরে, এমনটাই সূত্রের খবর। অর্থাৎ একেবারে নির্ধারিত সময় কাল আস্থা ভোট হবে, অর্থাৎ ফ্লোর টেস্ট হবে। যেটা বড় প্রশ্ন ছিল যে কাল ফ্লোর টেস্ট হবে কি হবে না, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ কাল আস্থা ভোট।
আস্থা ভোটের ওপর স্থগিতাদেশ দিল না সুপ্রিম কোর্ট। কালই বিধানসভায় গিয়ে ইস্তফা দিতে পারেন উদ্ধব ঠাকরে, এমনটাই সূত্রের খবর। কালই ইস্তফা দিতে পারেন উদ্ধব ঠাকরে, এমনটাই সূত্রের খবর। মহারাষ্ট্র বিধানসভায় একেবারে নির্ধারিত সময় কালকে আস্থা ভোট, আপনাদের জানিয়ে রাখি 11টার সময় কালকে এই কাজ, বিধানসভার যে অধিবেশন সেটা শুরু হবে। আস্থা ভোট হবে কাল সকাল 11টায় এবং সন্ধে 5টার মধ্যে, বিকেল 5টার মধ্যেই পুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা উদ্ধব ঠাকরে। आएंगे, लेकिन इसी बीच जिस वक्त आप रौनक कोकड़े से बात कर रहे थे, उसी वक्त मैं मातोश्री में अपने सूत्र से बात कर रहा था और बहुत बुझे हुए थे। उनका कहना था कि जो कोर्ट का फैसला है वो उनके अनुमान के मुताबिक नहीं है। अब से कुछ देर बाद फैसला होगा कि आखिर उद्धव ठाकरे अब क्या करने वाले हैं। हालांकि पहले ही ये जानकारी आ चुकी है कि वो विधानसभा में जाएंगे, अपना भाषण देंगे और उसके बाद इस्तीफे की घोषणा कर देंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, पल पल बदलती परिस्थितियों में क्या होता है अगला फैसला, क्योंकि शाम को ये खबर थी कि अगर कोर्ट का फैसला बहुमत परीक्षण के पक्ष में आता है, बहुमत परीक्षण करवाने की बात कोर्ट कहता है, तो फिर ऐसी सूरत में उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा दे देंगे और विधानसभा को फेस नहीं करेंगे। लेकिन 2 घंटे के भीतर परिस्थिति फिर बदली। अब फिर क्या परिस्थिति बदलेगी, क्योंकि मातोश्री के हमारे सूत्र ने यह कहा कि उनको ऐसी जानकारी लगी है कि जो विधायक हैं वो मुंबई नहीं आ रहे हैं। বিধায়করা মুম্বাই আসছেন না এখনো পর্যন্ত, যেটা খবর আমাদের প্রতিনিধি আমাদেরকে যেমনটা জানালো। नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने भी याचिका दायर की थी, ये कहते हुए कि फिलहाल वो जो है जुडिशियल कस्टडी में है, यानी कि न्यायिक हिरासत में है और उनको जेल से बाहर निकल करके अनुमति दी जाए कि वो जब अगर जो फ्लोर टेस्ट होता है उस दौरान वोट कर सके। हालांकि इन दोनों का वोट, अगर ये दोनों बाहर निकल भी आते हैं, कितना फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क पड़ेगा, लेकिन उन्होंने ये याचिका लगाई है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उस पर भी सुनवाई कर रहा है। मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट अगर उनको अनुमति दे भी देता है और वो जो वोटिंग की प्रक्रिया होती है उसमें हिस्सा लेते भी हैं, तब भी जो आंकड़ा है आज की तारीख में महाविकास आघाड़ी गठबंधन के पास में वो बेहद ही कम है। 110 से 115 विधायकों का समर्थन, और उसमें भी जो समाजवादी पार्टी है उसका जो विधायक है वो भी मुमकिन है कि इस वोटिंग प्रक्रिया में अब्सटेन हो जाए, क्योंकि अबू आजमी का जो बयान सामने आ गया है, जिस तरीके से नाम बदला गया है, औरंगाबाद का जो नाम बदला गया है, उसको लेकर भी वो नाराज नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अगर इनको अनुमति मिल भी जाती है तो उसका फ्लोर टेस्ट पर ज्यादा असर होता नहीं दिख रहा है। लेकिन इस सबके बीच में यह जरूर है कि नवाब मलिक और देशमुख, अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। यानी कुल मिलाकर के कोशिश ये जरूर इन लोगों ने की है कि ये लोग भी वोटिंग प्रक्रिया का हिस्सा बन सके, लेकिन अभी तक इनकी जो याचिका मंजूर नहीं हुई है। लेकिन रूबिका, आपको तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा, मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलता हूं। देवेंद्र फडणवीस के घर पर हूं मैं और यहां पर किसी भी वक्त देवेंद्र फडणवीस निकलेंगे अपने विधायकों के साथ बैठक के लिए, क्योंकि ये बैठक शाम को पहले 5 बजे प्रस्तावित थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शाम को 5 बजे से शुरू होने की बात हुई तो उसके बाद में 7 बजे का वक्त आया और अब यहां पर से जबकि आदेश आ चुका है, फैसला आ चुका है, कोशिश करता हूं आपको तस्वीरें दिखा सकूं, आगे बढ़ सकूं। देखिए, सुरक्षाकर्मी यहां पर बड़ी संख्या में तैनात हो गए हैं, क्योंकि तस्वीरें अब यहां से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो मीडिया कर्मी है अलग अलग चैनल्स के, वो पहले से मौजूद हैं और अब इंतजार किसका हो रहा है? इंतजार हो रहा है इस गेट का। देखिए किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर इंतजार चल रहा है, सुरक्षा कर्मी पहले से मौजूद हैं और इंतजार चल रहा है कि किसी भी वक्त इस वक्त यहाँ पर निकलेंगे देवेंद्र फडणवीस निकलेंगे अपने घर से और उनके घर का ये मुख्य द्वार, जिससे वो यहां से निकलेंगे और पहुंचेंगे कहां? विधायक दल की बैठक के लिए। वो